that is mole concept. Lecture 2. Date is 20th July 2020. Right? So we have seen mole mass relation. Let's say number relation we are going to build over here. So see, we know that 1 mole is equals to 6 into 10 to power 23. If it is atomicity, then atom, or it could be, you know, this is for element, कोई element दे रखा है ना, या फिर 6 into 10 to power 23 molecule, कोई substance दे रखा है. So if we came to know x moles, है ना, तो क्या हो जाएगा, इससे multiply हो जाएगा. So that is total number of, hence total number of atom or molecule is equals to number of moles into Na या फिर 6 into 10 to power 23. तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया. Now number of moles, how you are going to calculate? With the help of, you can calculate number of moles with the help of mass. अगर एक एग्जांपल लिखूं मैं, find number of moles of CO2 in 66 ग्राम, है ना, सैंपल. ठीक है, पहला. दूसरा, if we will add 3 into 10 to power 23 molecule of CO2 in sample. Find number of moles and mass in final sample. So there are two questions you have to solve. Imagine पहले एक बॉक्स टाइप का है, उसमें 66 ग्राम CO2 है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं आपको. 0.7. And if I am going to add 66 ग्राम CO2 में 3 into 10 to power 23 molecule, तो बताना है नंबर ऑफ मोल्स एंड मास. तो चलो सॉल्व करो. Correct. First answer, Ronak has given correct answer. Correct, Aryan. Correct. First, scroll up.
ठीक है, तो अब सबका आ गया होगा आंसर इसमें। ठीक है, लेट्स सी कि क्या करना है ना। So you have to first calculate what is molecular mass, है ना, of CO2. Okay, this is what you have to do. So molecular mass of CO2 is, that is, if you are going to see carbon, then 12 plus 2 into 16, that is 44 AMU. तो hence molar mass कितना हो जाएगा? 44 gram. What is the formula? Number of moles is equals to, है ना, given mass or sample mass divided by molar mass. Given mass 66 gram, molar mass 44, so you are getting answer 1.5 over here. Now 1.5 moles अभी already है. How many moles we have added? So number of moles added, ये A हो गया मान लो, B part. Number of moles added, अब नंबर दे रखा है यहाँ पे 3 into 10 to the power 23. So you have to divide. फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? टोटल डिवाइड बाय Na. So we are going to write number of moles added is equals to 3 into 10 to the power 23 divided by 6 into 10 to the power 23. So that will come 1 by 2 or 0.5. So hence moles, final moles are equals to 1.5 plus 0.5. So that will be 2 moles. And what is the mass? Mass is going to be number of moles into molar mass 44, so 88. Now anyone is facing problem? कोई किसी को दिक्कत? ठीक है, तो इसमें बस यही याद रखना है, दो फॉर्मूले हैं आपको याद घुमा के याद रखने हैं. मास के लिए आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, है ना, समरी में लिख देता हूं अभी मैं फिर से. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सैंपल गिवन और आस्क्ड, है ना, ये यहाँ पे पूछा रहेगा कई बार, डिवाइड बाय मोलर मास. ये क्वेश्चन में मिलेगा और ये खुद से याद करना रहेगा ऐसे मॉलिक्यूलर मास से. राइट, नंबर ऑफ मोल्स. और नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपका? नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ, divided by Na. So these are two formula we have used. Now with the help of these two formula I will give you one question.
चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूँ सबके आंसर आए हैं ना। क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहे? ओके आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो यार, कैसे पढ़ोगे बताओ? सर सी। सी में कितना आया, कितने मास आया, कितना ग्राम? सर एक मिनट। मैंने दो फॉर्मूले बताए ना अभी यहाँ पे, आप इन दोनों फॉर्मूलों को देखो। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स टोटल नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na। मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मॉलिक्यूल से मोल्स निकलेंगे, मोल्स निकल के यहाँ पे मोलर मास निकाल के मास नहीं निकाल पाओगे? जल्दी करोगे जल्दी जल्दी फास्ट, कुछ समझ में नहीं आएगा नहीं तो। कितने लोग रिवाइज करके आए हाथ दो। एक, बिना पढ़े थोड़ी ना होगा कुछ, बिना पढ़े के पढ़े नहीं होगा बेटा। दो लोग अब पढ़ गए हैं। आई एम श्योर कि आप ये बात समझ रहे हो कि आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। जस्ट इंडिया में ना कुछ ना आने वालों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। एक एक सर्वे आया था, एक स्टडी आई थी कि इंडिया में बहुत सारे मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स है ना बेकार हैं। 85% ऑफ इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। उनको पहले सिखाना पड़ता है फिर वो काम करते हैं। एंड इन द मार्केट वेयर सो मच कंपटीशन इज देयर, अब तो ट्रेनिंग देने वाले भी आईटी इंडस्ट्री कम हो गई है, क्योंकि क्या होता है लोग 2 साल के बाद चले जाते हैं, लॉयलिटी तो है नहीं, तो जो कंपनी सिखाती है ट्रेनिंग कराती है तो वहां तो कोई रुकता नहीं है, वहां से निकल जाते हैं वो लोग। तो अब वो भी बंद हो गया है। तो अगर आप सीखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं और मेहनत नहीं करोगे तो आगे आने वाला टाइम डिफिकल्ट है। इट्स अ हैबिट, आपको प्रायोरिटी रख के करना पड़ेगा, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे आंसर अभी भी नहीं मिल रहे मुझे। कोई ना हैज गिवन आंसर,
कोइनाज आंसर इज करेक्ट। 3-4 लोगों के आए हैं आंसर, मैं चाह रहा हूँ सबके आए। इससे लल्लू क्वेश्चन क्या दूंगा मैं? मैंने पूछा है मैक्सिमम मास। तो आपको रोज पढ़ना है, ठीक है? अभी मैं बता दे रहा हूँ ये बात। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको एक एक और यू आर मैच्योर, लाइक दिस मच मैच्योर यू आर, कि आपको रोज रोज डांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इतना समझ में आता है आपको। चलो देखते हैं आंसर्स। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं यहाँ पे। Number of molecules is 1.5 into 10 to the power 23. So can you convert moles? So number of moles is equals to number of molecule divided by Na. So 1.5 divided by that is 1.5 into 10 to the power 23 divided by 6 into 10 to the power 23. So this is going to be 1 by 4. It's going to cut 4 times. So 1 by 4. That means mass is going to be what is going to be mass? So mass is going to be 1 by 4 into what is the molar mass of SO2? 64. So that is 16. 5 moles of H2. What is the answer? तो एक मोल का मास कितना होता है? यहाँ पे तो डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। सो 5 into 2 दैट इज 10। यहाँ पे लिखा है 9 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। तो देख लेते हैं कितने मोल्स हुए। सो नंबर ऑफ मोल्स 9 into 10 to the power 22 divided by 6 into 10 to the power 23. So this will be cut यहाँ से ये 1.5. So this is going to be 1.5 divided by 10, or you can say 0.15. So mass will be 0.15. What is the molar mass of CaCO3? You have to solve, so it will come 100. तो आ जाएगा 15 ग्राम। Now 100 ml of water दे रखा है, वाटर की डेंसिटी 1 है, तो क्या होता है? मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। 100 into 1, that is 100 ग्राम। So which is the answer? D is the answer. सैडली केवल एक ही बच्चे का आंसर सही है, ठीक है? और केवल कितने बच्चों ने आंसर दिया है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों ने बस आंसर दिया है, राइट? 21 में, बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया, तो ये गलत है ना, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। चलो एक और क्वेश्चन। अगर मान लो एक सैंपल है, ठीक है, वाटर का सैंपल है, लेट्स से दिस इज वाटर सैंपल, ठीक है, 18 ml। 18 ml का मतलब क्या होगा? 18 ग्राम है ना। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो जितने ml होंगे उतनी ही डेंसिटी हो जाएगी, सॉरी जितने ml होंगे उतने ही मास हो जाएगा। तो 18 ml इक्वल्स टू 18 ग्राम। यू कैन रिमेंबर दिस। 5 डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर ml, ठीक है, दैट्स राइट। So now I am writing the question. Find first number of molecule, number of moles. Second, number of molecule of H2O. Third, number of atoms of hydrogen. Fourth, number of electrons. Fifth, number of protons. Sixth, number of electrons. Number of neutrons. ये सब बताना है। 18 ml वाटर दे रखा है, इसमें बताना है कि ये क्या होगा। तो जल्दी जल्दी बता दो जाओ, बहुत आसान है ये तो। Sir, 18
ml मतलब 18 ग्राम. 18 ml मतलब 18 ग्राम. क्यों? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml. ठीक है, तो पहले वाले केस में पहला मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे 18 ml मतलब क्या हो जाएगा? मास इक्वल्स टू वी कैन से that is volume into density. So this is 18 ml into 1 gram per ml. ml cut. This is going to be 18 gram. So how many moles? So mass is 18 and molar mass is also 18. Sample का mass कितना है? ये क्या है? Sample mass, given mass. And molar mass is also 18. So that's why number of moles is 18 divided by 18, 1. Molecule कितने जाएंगे? Number of moles into Na. So this is 6 into 10 to the power 23. एक मॉलिक्यूल में हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर देयर? 2 हाइड्रोजन एटम आर देयर. एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है. तो 6 into 10 to the power 23 में कितने जाएंगे? 6 into 10 to the power 23 into 2. अब आगे बताओ ये ऐसे ही कितने इलेक्ट्रॉन है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है. हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल में कितने हैं? ऐसे ही हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है? कितने प्रोटॉन है वाटर मॉलिक्यूल में? यू कैन कैलकुलेट. तो एक मॉलिक्यूल में पता चल जाएगा. तो 10 सॉरी, तो आपको 6 into 10 to the power 23 में मिल जाएगा. चलिए बताओ फास्ट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? Sir, 6 into 10 raised to power 23. हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूँ. इलेक्ट्रॉन 1. 1. ऑब्वियसली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन 1. ऑक्सीजन में अभी आपको ये डिफरेंशिएट नहीं करना नहीं आ रहा है. पूछा क्या जा रहा है? मोल बोल दिया तो हर जगह मोल नहीं लग रहा है ना. आपको ये डिफरेंशिएट करना समझना पड़ेगा. पूछ क्या रहा हूं मैं? अच्छा, तुम में से सबका रिजल्ट आ गया? सारे बच्चों का रिजल्ट आ गया? हाँ ना, कुछ तो बोलो. महाराष्ट्र बोर्ड वालों का आ गया रिजल्ट 10th में? नो सर. बहुत स्लो बदलो हो यार तुम लोग. एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसका 5 मिनट बाद आंसर देते हो. तो इसमें सोचने की जरूरत है क्या? There are 8 electrons. जिन लोगों का सीबीएसई में आया है, कितने लोग ऐसे हैं जिनका 90 परसेंटाइल से ऊपर है? 90% से ऊपर मार्क्स आए? हाथ दो. कितने लोग ऐसे हैं जिनका 80 से ऊपर है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका 60 से नीचे है? कितने लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र बोर्ड के हैं? हाथ उठाओ. ओके, तो
आप जितने भी लोग हो यहाँ पे, है ना, आप लोगों को रिप्लाई करना है। आंसर गलत सही बात की बात है, आपके रिप्लाई आने चाहिए। आप लोग सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, सही आंसर आएंगे ही नहीं फिर। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे क्या? 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 18 ml में निकालने हैं ना, एक में है ऊपर 10। हाउ मेनी? 10 हुए। वन में, वन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? सो हाइड्रोजन में एक, तो 1 into 2। ऑक्सीजन में 8, तो 10 हुए। एक मॉलिक्यूल में 10, तो 18 ml में कितने मॉलिक्यूल्स थे? 6 into 10⁻23। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल into 6 into 10⁻23. So how many number of electrons? 10. 10 into 6 into 10⁻23. So answer is 6 into 10⁻24. Similarly, proton, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 into 6 into 10⁻23. So this is 6 into 10⁻24. Number of neutrons, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो केवल कितने होंगे? 8. 8 into 6 into 10⁻23. So that is answer. 8 into 10⁻23. समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? तो ये अभी मैंने सिंपल कैलकुलेशन ली है, मैंने 1 मोल लिया था। हो सकता है किसी क्वेश्चन में घुमा दिया जाए, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, है ना, सेम क्वेश्चन है लेकिन आपको करना है। इफ 10 drops of water forms 1 ml, find, है ना, 1 ml, find number of mole, B number of molecule, C number of electron in 1 drop of water। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया मैंने। 10 ड्रॉप से बन रहा है 1 ml, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम पता चल जाएगा, 1 ड्रॉप का मास पता चल जाएगा। जल्दी से बताओ आंसर, फास्ट। यशस्वी, आंसर इज 5 moles, 1.8, 1/18, और ये एक ड्रॉप में 10 ड्रॉप में 1 ml है। एक ड्रॉप में कितना हो जाएगा? 1/10 ml हो जाएगा। 1/10 मीन्स 1/10 ग्राम। अभी मैंने बताया था ml को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे वाटर के लिए। अब ये मास ऑफ सैंपल पता है, मोलर मास पता है वाटर का 18। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दैट इज मोल्स इक्वल्स टू मास, that is 1/10 or 0.1 you can write, or 0.1 divided by 80, so that is 1/80। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो। 1000 into 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से डिवाइड करो, 18 से 1000 को कट करो 5 टाइम्स, 900, फिर बचा 100, तो फिर 5 टाइम्स 5.5 समथिंग, 5.55 ऐसे into 10⁻³ moles, और you can write 1/80। मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 1/180 into 6 into 10⁻23, तो इससे कटेगा ये 30 टाइम्स।
तो ये कितना आ जाएगा 10⁻23 डिवाइड बाई 30 और यू कैन से 100 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाई 30 सेट करेंगे तो 3.33 आएगा। आंसर 3.33 इंटू 10⁻21। फिर उन्होंने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पता ही था आपको 10 होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आए उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3.33 इंटू 10⁻21 इंटू 10, 3.33 इंटू 10⁻22। अब ये बताओ इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, मुझे बताओ, आंसर नहीं आ रहे आप लोगों के, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हाँ ना, सबके आंसर आने चाहिए पहले तो, हाँ भी ना भी कुछ भी बोलो तो आना चाहिए, रिप्लाई होना चाहिए। ये समझ में आया? से यस नो। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे एक ड्रॉप ऑफ वाटर में? 3.33 इंटू 10⁻22, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कितने हैं 3.33 इंटू 10⁻21 और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन 10, इसलिए देखो 2 लोगों का यस आया, मतलब यस लिखने में भी आपको लग रहा है टाइम। कि अपने आप को जिसने म्यूट किया है थोड़ा वो बेटा अनम्यूट भी कर लो, है ना, पीछे से बैकग्राउंड आ रहा है। सोहम, चलो ठीक है। अब देखते हैं आगे यहाँ तक। अब दूसरा है कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एसटीपी। किसी को पता है व्हाट इज एसटीपी? जानता है क्या होता है एसटीपी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है टेम्परेचर? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन सेम है क्या? नहीं, स्टैंडर्ड। चलो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर सही है, कोई और बताएगा? मोल मास नंबर पहले ही पढ़ चुके हैं, अब वॉल्यूम की बात करेंगे हम, ठीक है? 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन और 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे आता है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर that is called in short STP, and for NCERT purpose this is STP is equals to NTP, so do not get confused. What is temperature? Temperature is 273 Kelvin or 0 degree Celsius. And what is pressure? So pressure is 1 atm, that is equals to 760 torr or 760 mmHg according to old definition, and 1 bar which is equals to 750 mmHg according to new definition, ठीक है? बट हम यूज कौन सी करेंगे? ओल्ड वाली, ठीक है? सारी जगह पे यही वाली डेफिनेशन यूज होगी, राइट? बस ये फिर क्या है, जस्ट नॉलेज के लिए। नाउ at STP 1 mole of any gas, इंपॉर्टेंट थिंग है गैस, है ना, सॉलिड नहीं। जैसे मैंने बोला बताओ Fe आयरन का, एक आयरन मैंने ले लिया है और STP पे बताओ इसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, तो लोहा का वॉल्यूम, आयरन का वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं हो जाएगा, ठीक है? दैट इज सॉलिड। तो यहाँ पे याद रखना है एट STP 1 mole of any gas, not solid, not liquid, will occupy 22.4 liter. This is what you have to remember. ठीक है? तो अगर कोई जगह लिक्विड ले लिया है, अगर मान लो मैंने अल्कोहल ले लिया है और मैंने बोला बताओ STP में बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप ये मत करना कि वो 22.4 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट मैंने STP देख लिया तो मैं अब आगे कुछ देखूंगा नहीं,
और मैं आंसर लिख दूंगा 22.4, तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, 10 तक बहुत बच्चे करते हैं, वो एसटीपी देखते ही बोलते हैं 22.4, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा। 22.4 लीटर का मतलब क्या होता है? 22,400 ml। अब इससे क्या पता चला कि मोल वॉल्यूम है ना, क्या रिलेशन मिला? मोल वॉल्यूम। तो हेंस वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। ये मिल गया रिलेशन। तो हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, पहले लिख लो इतनी बात। चले आगे। अब चलो एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल? अगर मान लो मैंने बोला हो फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय फॉलोइंग गैसेस एट एसटीपी। एक है 9 into 10⁻22 molecule of SO2, B 1.2 into 10⁻23 molecule of NH3, C क्या हो जाएगा? That is let's say 3 moles of नहीं, मास भी लिख सकते हैं ना, 30 ग्राम 30 नहीं 60 ग्राम 60 ग्राम C2H6D। सबके वॉल्यूम निकालने हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक बात और आती है, नोट, वो लिखते पहले। नोट 1 ग्राम एटम, ऐसे लिखा हो 1 ग्राम एटम इज इक्वल्स टू 1 मोल। दिस इज फॉर एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट क्या होते हैं? एटॉमिक स्पीसीज होती है, तो एटम बोलेंगे। 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ऐसे डायरेक्ट लिखा हो ग्राम मॉलिक्यूल, दैट इज 1 मोल। इट इज फॉर सब्सटेंस। एंड कहीं पे लिखा हो 1 ग्राम आयन, दैट इज ऑल्सो 1 मोल। दिस इज फॉर आयनिक स्पीसीज। मतलब जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, लिखा हो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, दैट मीन्स 1 मोल। कहीं पे लिखा हो 1 ग्राम एटम मॉलिक्यूल NaCl, that means 1 mole NaCl।
एंड कहीं पे लिखा हो 1 ग्राम आयन of aluminium 3 plus, that means 1 mole Al3 plus. So this is you need to remember. यहाँ पे D option में लिख दे रहा हूँ 2 gram molecule of है ना N2. तो बताओ जल्दी जल्दी वॉल्यूम यहाँ पे क्या आएगा? STP और NTP सेम ही है, ठीक है आयुष? फर्स्ट वाला 1.12 लीटर 1.12 लीटर 1.12 नहीं होता, 1.12 बोलते हैं उसको। हाँ 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 ठीक है। और 9 into 10⁻22 है ना, तो ये कितना? आंसर कुछ और आया फर्स्ट हाँ दूसरा आएगा, कुछ और आएगा। 9 into 10⁻22 है ना, तो 0.15 आएगा। हाँ करेक्ट, यस। गलत आया है पहला वाला आंसर रौनक आपका। अरे यार नो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं हो रहे हैं, बताओ। मैं तो सो जाऊंगा, इतनी धीरे धीरे आप लोग कर रहे हो ना, मैं यहाँ सोने वाला। सर फर्स्ट का 33.6 आया। 33.6 नहीं आएगा, 9 से बाद 22 है, 23 नहीं है। मोल्स आएंगे आपके 0.15, तो 0.15 इंटू 22.4 करना है। 15 की टेबल पढ़नी आती है, पढ़ोगे तो उससे आ जाएगा 3.36, ना कि 33.6। तो ये गलत हो गया, आपने डेसिमल की गलती कर दी। ये बताओ जल्दी, 1.2 है यहाँ पे? ये सर 0.2 ओके कोई ना, करेक्ट, ओके हाँ हाँ ठीक है, कोई ना, आई गॉट योर आंसर, करेक्ट। तो देखो अब मैं बता रहा हूँ, इसके मोल्स हैं सर हाँ सेकंड का 4.48 है। ठीक है, so we got 0.15 moles and volume at STP क्या है हमारा? That is 0.15 into 22.4, so it will come 3.36. दूसरे में how many moles will come? So this is 1.2 into 10⁻23 divided by 6 into 10⁻23. So that will come 0. अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 1.2 है, तो इस पे 10⁻23 हट जाएगा, राइट, और ये 0.2 रह जाएगा, ठीक है। सो बस वॉल्यूम एट एसटीपी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एट एसटीपी इज 0.2 into 22.4, so that will be 4.48. How many moles are here? So C2H6 का मोलर मास है, C2H6 का मोलर मास होता है 30, तो यहाँ पे मोल्स कितने आ जाएंगे? 2। तो वॉल्यूम एट एसटीपी कितना हो गया? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 into 22.4, so 444.8। यहाँ पे 4.48 था, यहाँ पे 44.8। तो यहाँ 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स है, 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स मींस 2 मोल्स, so 2 into 22.4 that is 44, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखना कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका वॉल्यूम मास नंबर रिलेशनशिप। अब घुमा के कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं। आंसर तो नहीं आ रहे, मैं आज बहुत दुखी हूँ सच में। तो सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बड़े मुश्किल से, कोई डेसिमल की गलती कर दे रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा है। पहले तो आंसर ही बहुत कम लोग दे रहे हैं।
ऐसे मजा नहीं आएगा यार, ऐसे कैसे मजा आएगा? आप छोटी छोटी कैलकुलेशन में गलतियां कर रहे हो, आएगा मजा? बताओ। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, होता है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा घुमा के है ना, सीधे नहीं है, एक सैंपल है, ठीक है, इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट। क्या क्या दे रखा है? दे रखा है 3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ SO2, और क्या दे रखा है? प्लस 2 मोल्स ऑफ NO2, और क्या दे रखा है ना, 33 ग्राम ऑफ CO2, और क्या दे रखा है? राइट, 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ लेट्स से N2, और पूछा गया है फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एट STP। देखते हैं कौन जल्दी बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करने में टाइम मत लगाओ, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। फास्ट, कम ऑन, जल्दी से मोल निकालो, मोल्स, और फिर हर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दो डायरेक्ट इनटू 22.4। हिंट दे दिया मैंने, ये इंडिविजुअल वॉल्यूम निकालोगे फिर ऐड करोगे टाइम लगेगा। पहले मोल्स निकालो, मोल्स निकाल के सीधे डायरेक्टली 22.4, क्योंकि 22.4 क्या है, कॉमन है ना, तो मोल्स कैलकुलेट कर लो। अगर देखो 2 मिनट में आंसर नहीं आया तो मैं सो जाऊंगा। Sir, 77 liter. Okay, one answer I got. In fact, more than one. सबके अलग अलग आ रहे हैं, मतलब अच्छी बात तो ये है कि किसी ना किसी का तो सही हो ही जाएगा। और एक का तो -23 आया है भाई। वॉल्यूम कैसे इतना इतना कम हो जाएगा, लिखने से पहले सोचो तो। कैलकुलेशन से के साथ साथ दिमाग भी लगा हुआ है ना। मतलब एक का भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब दो लोगों का एक भी मैच नहीं कर रहा है। मुझे कितने आंसर मिले? 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट आंसर। चलो देखते हैं। ठीक है भाई, अब मैं करूं।
सर एक सेकेंड। कौन है बेटा? आपका आवाज नहीं आया, फिर से बोलो। चलो 2 मिनट तो कब के हो गए। चलो अब देखते हैं। राइट, पहले मुझे क्या करना है, देखो सब के मोल्स बना लेने हैं, क्योंकि मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ एट एसटीपी दिस इज सॉल्यूशन। वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। बस अब मैं यहाँ क्या करूंगा, 3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है, तो इनके मोल्स लिखूंगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एक मोल में होते हैं? 6 इंटू 10⁻23। तो 3 इंटू 10⁻23 में कितने हो जाएंगे? तो वो मुझे फॉर्मूला पता है, अगर नहीं होता तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो दैट इज 3 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, 0.5 0.5 मोल्स ऑफ SO2। NO2 के ऑलरेडी दे रखे हैं। अब CO2 का देखते हैं। CO2 के कितने हैं? 33 ग्राम, है ना। तो 33 डिवाइड बाई 44 जो दिस इज 0.75 मोल्स ऑफ CO2। और यहाँ पे 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल दे रखा है, तो ये भी मोल्स दे रखे हैं। तो टोटल मोल्स कितने हो गए? दैट इज 0.5 प्लस 2 प्लस 0.75 प्लस 1.5। 4.75। टोटल आया 4.75 मोल्स। बस वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा? 4.75 इंटू 22.4। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैं देखूंगा ध्यान से, 22.4 इंटू 5 कितना होता है? 22.4 इंटू 5 होता है 112 लीटर। उसमें कितना कम है? मतलब 1/4 कम है, तो 1/4 लीटर कितना होता है? 5.6। तो इसको 112 में अगर मैं 5.6 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, और यहाँ फिर मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, इससे भी आंसर मैं निकाल सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 106.4 लीटर। अब देखते हैं किसका आंसर ये आया। अभी वंश का अभी आया तुरंत, ठीक है, उससे पहले किसी का आया। अब जिन लोगों के आंसर नहीं आए वो मुझे बताओ कि क्यों नहीं आए, क्या गलती की, एक एक करके बताओ। यशस्वी, आर्यन, एजल, वंश, देव, तुम्हारा तो पता नहीं 10⁻23 कैसे आया। सर मैंने 22.4 की जगह 2.24 लिया। तो फिर तो भी यहाँ पे कितना आता है? 10.64 आता है। तो आया तुम्हारा 10.64। 9 मैंने 4.75 की जगह 4.7 लिया, तो 9.528 कुछ आया। अच्छा, ओके। तो तो अप्रोक्सीमेशन नहीं 95.28। लेना है। कुछ लोगों के आंसर आए थे, रौनक का आया था 106 एंड कुछ लोगों के और भी आए आंसर। ठीक है, चलो एनीवे। तो ऐसे समझ में आया ना क्वेश्चन? आपको जितना लगाओगे ना, जितना का भी आया आंसर, वेरी गुड। जिनके आए वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। अब कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, गुड। चलो अब इसी क्वेश्चन में बी, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में इफ आई विल रिमूव, इफ आई विल, है ना, इफ वी विल रिमूव CO2, है ना, then find a volume of sample, volume of sample at STP। अगर मान लो हमने CO2 हटा दिया, और B टोटल मास ऑफ सैंपल, टोटल मास ऑफ फाइनल सैंपल। जल्दी से बताओ। पहला आंसर तो आसानी है, बस आपको मोल्स ऑफ CO2 हटा देने हैं, राइट। दूसरा है टोटल मास ऑफ सैंपल। हाँ 89.60 लीटर। राइट, तो ये 4 इंटू 22.4 हो जाएगा, है ना। सो दैट इज 89.6 लीटर। चलो ये बात तो सही है। अब ये सोचो टोटल मास कितना आएगा, जल्दी से निकालो। अगेन मुझे सबके आंसर चाहिए। आप लोग सही गलत कोई बात नहीं है, आंसर जब तक लिखा सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक नहीं आएगा। केमिस्ट्री में यही प्रॉब्लम है।
चलो एक आंसर आया अभी, फर्स्ट आंसर आई गॉट। एक आ गया, देखो जल्दी जल्दी निकालो। तो मास, अभी हमें मोल्स पता थे तो क्या हम मास निकाल सकते हैं, है ना? यहाँ मोल्स पता है तो मास निकल सकते हैं सबके। क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आई गॉट अनदर आंसर। ओके, इस बार भी डिफरेंट है, तीनों लोगों के आंसर डिफरेंट है। बताओ यार, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है सही। तीनों के आंसर सेम आने चाहिए थे ना, पता नहीं किसका सही है। चलो देखते हैं। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मैं मल्टीप्लाई की तुम लोगों को वो दूंगा। चलो भाई सॉल्यूशन, तो अब क्या होगा, मास, टोटल मास is going to be 0.5 into मोलर मास ऑफ SO2 कितना होता है 64, फिर कितने 2 मोल्स ऑफ NO2 है, NO2 का मोलर मास कितना है, सो ऑक्सीजन इज 32, मतलब 16 into 2 32, और नाइट्रोजन इज 14, सो 46 प्लस 1.5 मोल्स ऑफ N2, तो 1.5 into N2 का 28, कितना आया ये 32, ये 16 into 2 कितना हो जाएगा 46 into 2 92, और ये 28 into 1.5 that is 42। तो देख लो किसी का सही है, अभी देखते हैं। 2 2 2 6 9 और 4 13 13 और 3, बताओ किसी का सही नहीं। और रौनक तुम्हारा ये 496 कैसे आ गया? मैंने वो सबका मास निकाला सब गैसेस का और उसे मल्टीप्लाई कर दिया 4 मोल से। अच्छा, तो गलत हो गया ना वो। हाँ हाँ ये वो तुमने क्या निकाला है? अच्छा चलो, तुमने जो निकाला उससे भी करते हैं, ठीक है। एक और काम करते हैं, सी है फाइंड एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर। अब क्या होगा, जो इसने किया है उसको समझा रहा हूं मैं। फाइनल मिक्सचर, तो हमें अगर एवरेज मोलर मास पता होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो चल जाता। तो क्या होता है, एवरेज मोलर मास क्या होगा, एम एवरेज होगा, हाउ मेनी मोल्स हियर, तो N1 M1 जो मैंने फॉर्मूला बताया था, प्लस N2 M2 एवरेज का, प्लस N3 M3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। तो N1 M1 यहाँ पे लिखा है 0.5 into 64, N2 M2 दे रखा है 2 into 46, तो ये वैल्यू हमें पता है 166। हाउ मेनी मोल्स आर गिवन 4, तो ये कितना आ जाता 41.5 ग्राम। अगर पूछा जाता है एवरेज मोलर मास बताओ तो कितना आ जाता 41.5 ग्राम। समझ में आया ये बात? किसी को नहीं समझ में आ रहा हो बता देना, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं ना। अब ये बात हमें पता चल गई, मास नंबर मोल रिलेशनशिप अगर हमें दिया होगा तो हम कर लेंगे, है ना, हम कर लेंगे ये बात, राइट। नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला याद क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, फिर से लिख रहा हूं मैं, बार बार लिख रहा हूं, है ना, दैट इज टोटल मास डिवाइड बाय मोलर मास, और मैंने क्या क्या बताया, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, और एटम डिवाइड बाय Na, और क्या होता है वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाय 22.4। सो दीज आर द 3 फॉर्मूला। अभी तक 3 फॉर्मूले हमने किए हैं, इन्हीं में से एक से दूसरे में अगर घुसना हो, जैसे मान लो अभी मास में जाना था
है ना, टोटल मास निकालना था। तो पहले वॉल्यूम, अभी तो यहाँ मोल्स दे रखे थे तो मोल से हमने निकाल लिया, कहीं मॉलिक्यूल दे रखे थे तो मॉलिक्यूल से मोल्स निकाले, राइट। सो ये इंटरचेंज होता रहेगा, इसमें कॉमन चीज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब बात आती है ये STP इक्वल्स टू 22.4 आता कैसे है। सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये आगे आएगा गैस स्टेट में, बस मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। कितने लोगों ने ये पहले सुना हुआ है PV इक्वल्स टू nRT, हाथ उठाओ जिन्होंने ये पहले सुना हुआ है PV इक्वल्स टू nRT। सुना है, बस मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आता है, बस सुना है। किसी ने नहीं सुना है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे अभी सुन लो। दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, ये गैस के लिए है, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, N इज नंबर ऑफ मोल्स and T is temperature of gas। और R क्या है, R is ideal gas constant and that is R की वैल्यू कितनी आती है 0.0821, ठीक है। R इक्वल्स टू है क्या, पहले R इक्वल्स टू लिखेंगे तो देन इट इज गोइंग टू बी PV बाई NT। तो यूनिट ऑफ R कितना हो गया, अगर प्रेशर ATM में लिखा, वॉल्यूम लीटर में लिखा, तो R की यूनिट क्या हो जाएगी ATM लीटर पर मोल केल्विन, पहली यूनिट। दूसरी यूनिट प्रेशर की एक और यूनिट होती है फोर्स बाय एरिया, है ना, इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल केल्विन, तो मीटर से मीटर ये कट जाएगा, सो दैट इज न्यूटन इनटू मीटर, सो दैट इज गोइंग टू बी जूल। तो ये क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू जूल पर मोल केल्विन। तीसरी यूनिट एनर्जी की यूनिट जूल के हिसाब से कैलोरी भी लिख सकते हैं, तो कैलोरी पर मोल केल्विन। तो वैल्यू ऑफ आर क्या है, वैल्यूज ऑफ आर अलग अलग हैं। पहली वैल्यू है दैट इज 0.00821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। दूसरी यूनिट है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तीसरी यूनिट है ना, इसको 4.18 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आता है ना 1.99 समथिंग, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ना 1.99 और अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी है याद करने को, 0.0821 को लिखते हैं 1/12, दिस वैल्यू कम्स 25/3 और ये मैंने आपको बता दिया है 2 कैलोरी पर मोल। तो ये वैल्यू, ये बात भी आप लिख लो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, एक साथ लिख।
डन, कोई लिख तो नहीं रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगर हम एसटीपी वाली कंडीशन रख देते हैं तो क्या होगा। तो हमें ये बात पता है प्रेशर वहां पे 1 atm है और टेम्परेचर जो है वो 273 है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 1 है, तो वॉल्यूम क्या आएगा वी कैन कैलकुलेट। तो एट एसटीपी हेंस एट एसटीपी क्या होगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो आपने P की वैल्यू 1 रख दी, V आपको नहीं पता, N की वैल्यू 1 रख दी, R T की वैल्यू 273। अब 273 R की वैल्यू निकालोगे which is going to be 273 into 0.0821, so this value will come 22.4, so that's how your answer is 22.4 liter. अब अगर if I am going to change temperature, if I will change temperature, volume of 1 mole gas will change, volume of 1 mole gas will change, ये भी बात याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बस एसटीपी पे रखेंगे तो हमें तो 22.4 आ रहा है, राइट, और कोई अलग टेम्परेचर करेंगे तो भी 22.4 आएगा, नहीं, अगर प्रेशर चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया तो फिर क्या होगा, ये वैल्यू अलग अलग आती जाएगी, ठीक है। क्या समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? हाँ ना, बोलते रहो भाई, अच्छा लगता है, समझ में, उससे लगता है कि आ रहा है तुम्हें समझ में। यस, चलो फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है इसमें लॉज ऑफ केमिकल। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, अगर नंबर मोल ये सब दे रखा है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब आती है बात इसमें नेक्स्ट, so this is over here, now next is laws of chemical combination. These are old laws, है ना, डाल्टन के टाइम के हैं, डाल्टन लेवोजियर के टाइम के हैं, है ना, बिफोर और इन द बिगिनिंग ऑफ 18 मतलब स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी और 18 समथिंग में आप देखोगे, then it is going to be they have given those type of law। तब बहुत कम बातें पता थी तो उसी भी बेसिस पे है। पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। पढ़ा है ये लॉ, क्या होता है कोई बताएगा? Mass of solution is equal to mass of reaction. So this is during a chemical reaction, correct, थोड़ा सही है, during a chemical reaction mass will remain conserved, that means total mass of reactant reacted total mass of reactant reacted is equals to total mass of product formed। राइट, ये है इसका मतलब, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इस बात को इस तरह से समझ लेते हैं, अगर हम समझना चाहें एक एग्जांपल से, अगर मान लो कहीं पे ये रिएक्शन लिखी है N2 + 3H2 gives 2NH3, so over here we are having let's say nitrogen like this, ये नाइट्रोजन के एटम है, and we are having let's say hydrogen atom is like smaller,
सो इफ आई एम गोइंग टू लेट्स से अलाइन दीज टुगेदर, तो क्या होगा, एक नाइट्रोजन उस पर 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन, फिर एक नाइट्रोजन उस पर 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। ना तो कोई एटम क्रिएट हुआ यहाँ पे, ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय हुआ। सो क्या हुआ, यू कैन राइट दिस पार्ट एज हेंस during chemical reaction or you can say chemical reaction is rearrangement of atom. Chemical reaction is rearrangement of atoms, है ना? Hence neither any atom got destroyed nor created. तो यहाँ पे क्या हुआ, ना तो कोई एटम आपका डिस्ट्रॉय हुआ, ना ही कोई एटम आपका क्रिएट हुआ। समझ में आया? आना आना बोलते रहो भाई, यस नो यस नो। हाँ सर। ओके, किसने दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? लेवोजियर ने दिया था वैसे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने दिया, कि नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब बस ये याद रख लो कि क्या होता है ये। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन बताएगा ये भाई मुझे, क्या होता है? सही गलत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इंटरेक्ट करो, है ना? बोलो क्या है। ओ क्या है, किसी को नहीं पता? ये 10th में है ना, ये सब है या नहीं है 10th में? है ना? ठीक है, चलो एनीवे अब देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होता है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ एनी कंपाउंड, है ना? जैसे अगर मान लो मैंने CO2 बोला, चाहे ये CO2 मैंने कार्बन को बर्न करके CO2 बनाया हो, चाहे मीथेन को बर्न करके CO2 बनाया हो, है ना, या फिर मैंने एटमॉस्फेयर से लिया हो, या फिर मैंने CaCO3 को हीट करके बनाया हो, ये CO2 किसी भी सोर्स से आया हो, है ना, कहीं से भी आया हो CO2, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका आपस में मास रेशियो या फिर उनका आपस में एटॉमिक रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यस करेक्ट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि कहीं से भी आप CO2 लेके आओ, चाहे H2O लेके आओ, कोई भी कंपाउंड लेके आओ, उसका सोर्स कहीं कोई भी हो, लेकिन उनका जो एलिमेंट्स होंगे या उनके जो कंपोनेंट्स होंगे उनका आपस में मास रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। सच में मुझे नींद आ रही है भाई, तुम लोगों ने सुला दिया मुझे आज। So we are going to say that mass ratio or weight ratio of
components, or this is elements, or you can say elements, will remain constant irrespective of source of weight ratio of components elements of a substance or in a substance, irrespective of source of substance. So let's say एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर हम CO2 ले लें, इसके सोर्स मैंने आपको बताई है ना, कहीं से ले लें, चाहे कार्बन को बर्न करके ले बना दें CO2, चाहे CaCO3 को हीट करके बना दें CO2, चाहे एटमॉस्फेरिक ले लें, कुछ भी ले रहे हैं ना, in all cases CO2 will contain 12 ग्राम कार्बन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन. तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो क्या हो गया, 12:32, so 3:8. सो परसेंटेज कार्बन आप निकाल सकते हो, दैट इज 3/11 into 100. परसेंटेज ऑक्सीजन यू कैन कैलकुलेट 8/11 into 100. टोटल मास है ना, सो मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100. मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाय 44 लिख लो, या फिर 3 डिवाइड बाय 11 लिख लो. तो ये हो गया कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इसका केवल सिंपल सा मतलब ये है कि पानी को वाटर, इसका मतलब ये है केवल सिंपल सा. अच्छा, उस टाइम पे ये एटम मॉलिक्यूल इन सब के बारे में इतना पता नहीं था ना, है ना, वी डोंट नो मच अबाउट एटम और मॉलिक्यूल उस टाइम पे. तो मास से उन लोगों ने कंपेयर किया है. अगर मास का रेशियो फिक्स है, इसका मतलब क्या है, मास फिक्स है तो एटम का रेशियो फिक्स होगा. भाई एक एटम का मास जितना होगा उसके हिसाब से आ रहा है ना, तो मास का रेशियो फिक्स होगा तो एटम का रेशियो फिक्स होगा. ये हम बात समझ रहे हैं. तो एक तरह से आप बोल, इस पूरे लॉ का मतलब ये है कि अगर कहीं मैंने वाटर बोला है तो वाटर हमेशा H2O ही होगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग एल्स. इसी तरह से अगर मैंने कहीं CO2 बोला है तो इट इज गोइंग टू रिमेन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बोला है तो इट इज गोइंग टू बी CO2. इट इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग एल्स. नेक्स्ट है इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. थर्ड, मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, अगर मान लो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, जैसे CO CO2 H2O H2O2 लाइक दैट. ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गोइंग टू कंबाइन. तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ना, लिख लेते हैं इसको, when two elements combine to form more than one compound, the mass of one element which reacts with constant mass of reacts with constant mass of other element
will have the masses, लिख लो यहाँ पे, the masses of one element which reacts with constant mass of other element will have a simple ratio, will have a simple ratio of masses, simple ratio of masses. Simple ratio of masses का मतलब क्या है भाई? अगेन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उस टाइम पे एटम ये सब के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन पता नहीं थी, तो मास की बात कर रहे थे, ठीक है? अभी हमें पता है, लेकिन अब तो अगर सिंपल रेशियो का मास होगा, इसका मतलब क्या है? सिंपल रेशियो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना? एटम्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सिंपल होगा। तो बस यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे कह रहे हैं ये एग्जाम्पल। जैसे मान लो कार्बन एंड ऑक्सीजन आर गोइंग टू कंबाइन, देन इट इज फॉर्मिंग राइट CO2 एंड CO। तो कांस्टेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का कांस्टेंट मास है यहाँ पे 12 ग्राम और यहाँ पे 16 ग्राम, यहाँ पे 12 ग्राम, यहाँ पे 32 ग्राम, ठीक है? 12 ग्राम अगर ये चीज कांस्टेंट है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या हो गया? तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज, मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज 16:32, दैट इज 1:2। तो ये 1:2 से क्या पता चला हमें कि एटम का जो रेशियो है, अभी आप देखो यहाँ पे कांस्टेंट मास है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट है। अगर यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट है, इन नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से जो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं उनका रेशियो देखो, देन इट इज 1:2। यहाँ दिख रहा है 1:2। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैंने बोला ये कांस्टेंट मास है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से अगर ये अच्छा अगर ये रेशियो 1:1 आ जाता, मान लो किसी ने बोला कि एक मैंने लैब में एक अननोन गैस ली है ना, A एक्सपेरिमेंट B एक्सपेरिमेंट, और इसमें मुझे कार्बन मिला 12 ग्राम और ऑक्सीजन मिला 16 ग्राम, और यहाँ पे कार्बन मिला मुझे 24 ग्राम और ऑक्सीजन मिला 32 ग्राम। तो मैं कहता 12 ग्राम और 24 है तो ये सेम नहीं है, इनको सेम बना लो, तो 24 ग्राम। तो 24 ग्राम के हिसाब से ये क्या जाता है? 32 ग्राम। तो नाउ द मास रेशियो ओवर हियर इज 32:32, मतलब 1:1। इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों गैसेस सेम ही होती, ये दोनों गैसेस सेम ही होती है ना, क्योंकि यहाँ पे 24 ग्राम से कितना रेट कर रहा है? 32। यहाँ पे भी 24 से कितना रेट कर रहा है? 32। तो देन इट इज गोइंग टू बी ऊपर वाला, है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला। मल्टीपल प्रोपोर्शन कब हुआ? जब यहाँ पे हमने बोला 12 ग्राम से 32 कर रहा है। नाउ वी नो कि यहाँ पे अच्छा नंबर ऑफ एटम सेम है और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 1:2 का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब क्या है? बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड। तो ये CO हो गया, ये CO2 हो गया। ये बात जिसको नहीं समझ में आई से यस, से नो, मुझे नहीं समझ में आई है तो फिर मैं दोबारा समझूं। एक मिनट, कोई कुछ कह रहा है? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, यू कैन अनम्यूट। जो लोग हाथ उठा रहे हैं वो मुझे बता दो क्या दिक्कत आ रही है। सर एक बार वापस समझा दीजिए ना। मैंने क्या बोला? देखो, मैंने ये बोला कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए या एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, तो क्या होगा? तो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें क्या हम सच में हमें ये पता करना पड़ेगा कि सच में यहाँ पे जो मास रेशियो है वो सेम है या अलग अलग है। अगर सेम मास रेशियो आ जाता है, जैसे 12:16 का ही मास रेशियो आ जाता है या 3:8 का मास रेशियो आ जाता है, तो हम बोलेंगे ये जो है कंपाउंड ये सेम ही है, ये दो अलग अलग सोर्स से आए होंगे, है ना, इनके सोर्स अलग हो सकते हैं। तो कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ? पहला वाला, मतलब पिछला वाला, दैट इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट। अगर ये 12:16 मिलता है, यहाँ पे भी 12:16 मिलता है, तो ये आंसर क्या आता है यहाँ पे? राइट, दी बोथ आर सेम गैसेस, तो ये दोनों CO गैस हो जाती है। सॉरी, 3:4 एंड बोथ आर गोइंग टू बी सेम गैसेस। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिला? 12:32 का रेशियो मिला। इसका मतलब क्या है कि अगर कार्बन के एटम सेम है तो उन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम से कंबाइन होने वाले ऑक्सीजन अलग अलग हैं। यहाँ पे 16 है, यहाँ 32 है, सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दो अलग अलग कंपाउंड है, CO एंड CO2, और इनमें आपस में एटॉमिक रेशियो क्या है? जो मास का रेशियो होगा 16:32 का रेशियो क्या हुआ? 1:2, है ना, दैट इज मास रेशियो।
16:32 दैट इज टेलिंग अस अबाउट एटॉमिक रेशियो। तो इससे हमें फॉर्मूला मिला कि अगर ये कार्बन है C है तो ये O हो गया, तो ये CO2 हो गया। ये समझ में आई बात? आया ना? हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये हो गया कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस क्या है? अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस, अवोगाद्रो साइड अगर मान लो दो गैसेस ली मैंने एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर मैंने दो गैसेस ली एक कंटेनर में हैविंग सेम वॉल्यूम V एंड V, then Avogadro said that यहाँ पे irrespective of nature of gas, कोई भी गैस लियो, मान लो यहाँ हीलियम लियो, यहाँ SO2 लियो, डजंट मैटर कि ये मोनो एटॉमिक है या ये ट्राई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है ना, irrespective of nature वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो मोल्स भी सेम होंगे। तो अगर यहाँ x मोल होंगे तो यहाँ पे भी x मोल। दिस इज व्हाट अवोगाद्रो said कि व्हाट इज अवोगाद्रो said। तो मैं अब यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि कोई दो गैसेस सेम सिमिलर कंटेनर में रखी हैं, मान लो 20 लीटर के या 1 लीटर के, तो इट डजंट मैटर कि गैस कौन कौन सी है, गैस का नेचर क्या है, राइट, मोनो एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, क्या है, डजंट मैटर। अगर वॉल्यूम सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे। दिस इज व्हाट अवोगाद्रो said। सो अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो, that if any of two gases है ना, gases occupy same volume at constant temperature and pressure, then their number of moles will also be same। तो आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हो, अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो वॉल्यूम सेम होगा, है ना। तो दिस इज द रिलेशन अवोगाद्रो said B is proportional to number of moles। सर तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम ही रहेंगे? फिर ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। मतलब 6 into 10⁻23 ना दोनों में? हाँ, अगर एक एक मोल होगा तो x मोल है ना, मल्टीप्लाई कर दो x से। अब ये बात हम कहां से समझ सकते हैं? आइडियल गैस से समझ सकते हैं बहुत आसानी से। कैन से PV इक्वल्स टू nRT। अगर P और T कांस्टेंट है, R तो पहले ही कांस्टेंट है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू N। तो अगर दो गैसेस के लिए V1 by V2 क्या होगा? N1 by N2। right, so we can understand it's not। so here also it said, the Avogadro said hence at STP। अच्छा, जहां पे आपने लिखा है ना नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे एक और बात लिख लेना जो कि अभी बताया था किसी ने, दैट इज, और यू कैन राइट इन ब्रैकेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर कोई पूछेगा नंबर ऑफ एटम्स तो सेम नहीं होगा, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स नहीं सेम होंगे, राइट। तो ये भी लिख लेते हैं। अगर हमने SO2 लिया और यहाँ पे हमने हीलियम लिया, राइट, और इसके मान लो 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 is equal to number of moles of helium।
ठीक है. Then molecules of SO2 equals to atoms of helium. क्योंकि ये मोनोएटॉमिक है तो हीलियम के लिए जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें एक ही एटम होगा, सो दैट्स व्हाई एटम्स ऑफ हीलियम. ये दो बातें सही हो गई. क्या गलत हो गई? एटम्स ऑफ SO2 is equals to, ये गलत हो गया, atoms of helium. So first thing is correct, second thing is correct, this third thing is wrong. So wrong का मतलब is not equal, हमने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है. इसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? इसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होंगे, इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा. सो यू कैन सी द नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स आर सेम. ये लिख लो. ठीक है, लिख लिया. So hence Avogadro also said कि at STP Avogadro find out that at STP 1 mole of any gas will occupy 22.4 लीटर, जो हम पहले बता चुके हैं. ठीक है, ये तो हो गई एवोगाड्रो हाइपोथेसिस. नेक्स्ट है गै-लुसैक्स लॉ. According to Gay-Lussac's law, when gases reacts to form or when gases reacts their volume ratio is a simple ratio. Their volume ratio is a simple ratio which is equals to molecular ratio. So this is we can understand कि जब भी गैस रिएक्ट कर रही है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, N2 + 3H2 gives 2NH3. ये दो गैसेस रिएक्ट करके एक और गैस बना रही है, गैस गैस गैस. अब यहाँ देख लो, अगर यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, हाउ मेनी, लेट्स से N2 reacting 1, how many H2 reacting 3, how many NH3 has formed 2. इसका मतलब क्या है? 1 मोल N2 से 3 मोल H2 रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बनाएगा. 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मान लो अभी मैंने बताया मुझे टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन नहीं पता है, तो 1 मोल का वॉल्यूम है V लीटर. 3 मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 3V लीटर. 2 मोल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2V लीटर. तो वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा? That is V/3V/2V, that is 1/3/2. So this is simple ratio and this is nothing but molecular ratio or mole ratio.
बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस, है ना, गैसेस, ओनली फॉर गैसेस की बात कर रहे हैं, लिक्विड सॉलिड की बात नहीं। ये हो गए आपके केमिकल लॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। आई थिंक आज के लिए काफी है। आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज से, सो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉड्यूल मिला है आप लोगों को, सॉरी एटॉमिक कह रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट का। हाँ सर। हाँ, तो आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। उसके फर्स्ट 10-20 क्वेश्चन तक आप ट्राई करो सॉल्व करना। सर वो मेरे को आपने पहले एग्जांपल दिया था ना, उसमें मेरे को डाउट आया था। फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय फॉलोइंग गैसेस एट एसटीपी, तो आप वो वाला पेज ओपन करो ना थोड़ा। कौन सा वाला? तो आपने एग्जांपल में दिया था ना, फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय फॉलोइंग गैसेस एट एसटीपी, वो वाला। ये वाला? नहीं, और ऊपर, और ऊपर सर, ये पहला 9 into 10⁻²² मॉलिक्यूल ऑफ SO2। हाँ, तो सर उसमें मैंने कैसे किया था कि मतलब SO2 के अंदर मॉलिक्यूल्स 6 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, तो उसका वॉल्यूम इक्वल होगा 22.4 लीटर्स को। तो अगर SO2 के मॉलिक्यूल्स 9 into 10⁻22 है, तो फिर वो इक्वल होगा X को। तो बाद में मैंने 22.4 into 9 into 10⁻22 किया और डिवाइड किया उसे 6 into 10⁻23 से। तो सेम ही आएगा ना? नहीं, मेरे को आंसर 1.12 लीटर्स आया था। इसका आंसर 1.12 आया होगा ना, पूरे का कितना आएगा? कितना है? 1.12 लीटर्स। नहीं, देखो क्या है, आपने क्या किया, मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। फिर से बोलो, क्या बोला था आपने? मैंने बोला कि मतलब 22.4 इंटू 22.4 into 9 into 10⁻22 हाँ, बाय 6 into 10⁻23। यही किया है ना? हाँ हाँ हाँ। तो बस ये देख लो, कट गया यहाँ पे 2 3, ये कट गया 10, तो 22.4 इंटू 3 डिवाइड बाई 20। तो तुम ये 3 भूल गए होगे यहाँ से, इसलिए तुमने 1.12 लिख दिया यहाँ पे, इंटू 3 3.36। समझ में आया डिफरेंस? गलती कहाँ की? हाँ 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 हाँ। यू मिस 3, सेम ही आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। ठीक है, चलो यहाँ तक आप लोग कर लो, है ना। मॉड्यूल जो भी है उसको 20 क्वेश्चन फर्स्ट आपको करने हैं। सर किधर से करने क्वेश्चन? हाँ, आपको एक मॉड्यूल दिया होगा, नहीं दिया है? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। नहीं मिला है सर। नहीं मिला है। कौन से बैच से हो आप? घोड़बंदर, कल्याण? घोड़बंदर। घोड़बंदर से हो। कल्याण वालों को भी नहीं मिला है? नहीं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है, आपको भेज दे रहा हूँ।
ओके दैट्स इट, चलो शाम में देख लेना है ना, शाम तक आ जाएगी रिकॉर्डिंग। ओके